आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है ललित ने और वीडियो का टाइटल है व्हाट इट्स लाइक एपिसोड 1 क्रूज वेकेशन इन इंडिया विद फैमिली कर्ली टेल्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। When was the last time you traveled with your entire family? Well, for me, it's been over 10 years. I am going on an epic cruise trip to Lakshadweep with my entire family. My husband, my kid, my parents, my in-laws, my siblings, my nephews. कोई भूल तो नहीं गई? Anyway, welcome to Cordelia Cruises. इससे पहले भी देखी है हमने। क्रूज वेकेशन, वो भी इंडिया में। इज दिस हैपनिंग फॉर रियल? अब ये सब हमने सिर्फ फॉरेन या फिल्मों में देखा था, बट ऑन दिस ब्रांड न्यू शो ऑन कर्ली टेल्स वी टेल यू व्हाट इट्स लाइक टू बी ऑन अ क्रूज वेकेशन इन इंडिया। Wow, this is such a huge ship. मतलब कितना कुछ है यहाँ करने को। पहले तो cruising is not a very common culture in India, but very common internationally. बहुत सारी मेहनत और ढेर सारे permissions के बाद हम Indians को मौका मिल रहा है to experience cruising in India. ये ना सिर्फ एक नया तरीका है, but it's also fun and affordable. I'll break down those details for you, but सबसे पहले boarding कर लें। और इसके बाद ये मुझे लगता है वो पानी की वजह से हो गया ना थोड़ा सा। This iconic vessel first set sail in the year 1990 with the name the Nordic Impress. After sailing the Bahamas and the Caribbean, the Impress is now cruising the west and the east coast of India. Cordelia Cruises is India's premium cruise liner that comprises of over 790 cabins, 11 decks, fine dine restaurants, bars, lounges, theatres, casinos, non-stop entertainment, musical performances and so much more. Well, so this is the atrium. Massive, big. You can pretty much see all the decks from here. बहुत ही खूबसूरत है. And you know what? We are about 19 of us, 13 adults and 6 kids. Firstly, it was so difficult to bring everyone together for this trip. But now that we are here, everyone's so excited. सब अपने अपने rooms में भाग गए. So let me quickly show you my suite too. Come on in. ऐसे ज़्यादा मजा आता है ना, सारे इतनी बड़ी फैमिली। Come, let me show you my suite. ओह Wow, this looks really grand and nice. Well, there are cupboards here with the bathrobe and very important, a life jacket. There's also a safe here where you can keep your valuable items. Let me show you the bathroom. It's got a bathtub too. Let me show you the ocean view room. ये वो वाला जो मैं पहले भी देखा। हाँ। It's nice, compact and very cozy. ऐसे मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही है एक्सप्लोरिंग दिस शिप। आई एम सो एक्साइटेड। बट अब हम इस शिप में हैं फॉर द नेक्स्ट 5 days, सो डोंट यू वरी, मैं जो एक्सपीरियंस करूंगी आपको अपने साथ एक्सपीरियंस करवाऊंगी। बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। सी यू सून। अच्छा शॉट है। हाँ।
ship is so big that I definitely need some assistance. So I have Nishant, who's from the cruise admin, joining in to take us through a really cool ship tour. So join along. Welcome on board once again. Namaste. First place is the Marquee Theatre. Okay. The main place where all the guests come to watch all the shows. So all our main shows happen here. And for those of you who'd like to win some money while sailing, try your luck at the Casino Royale. तीन निक्के आना बड़ी बात है। Port Delia Cruise has about 3 restaurants to offer. There's Starlight, there's Food Court, and there's also Chopstick. Starlight and Food Court is literally open to all. It's an all-inclusive package. Anybody who checks into a cruise will have to go in for a package where all your meals are also taken care of. There's no option of whether or not, because आप cruise के बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकते खाना खाने, तो आपको यहीं खाना है. So all cruise packages are always all-inclusive. There's one restaurant which is Chopstick where you need to do it as an a la carte basis. But currently I am at Starlight, which is a beautiful restaurant and offering an uninterrupted view of the sea. Oh, that's where my family is. Well, I'm sure आप काफी curious होंगे ये जानने के लिए that how much does a cruise vacation actually cost? Let me tell you, to begin with, it all depends on the category of room that you are selecting. Be it the interior room, the ocean view room, the balcony room, the suite, or even the chairman suite. But the best part is, all the packages are always all inclusive, by which I mean your breakfast, your lunch, your dinner, your stay, your travel cost, everything is covered for. और साथ ही साथ you have about 102 people entertaining you as you travel from one destination to another. Price is also dependent on the number of nights you spend on the cruise. A 3-nighter cruise starts at 45,500 rupees for 2 people, whereas for 5 nights it starts at 80,500. But this is for a basic room category with no ocean view at all. If you wish to enjoy the breeze of the ocean in your open balcony, you can opt for a balcony room or a suite, which is a little more pricey. Well, planning this dream vacation wasn't very easy to bring firstly everyone together. Secondly, a bit steep on the pockets because it's a big group, a bulk amount to be spent at one go. But when you're creating memories worth a lifetime, everything is manageable. To make this work, I got an instant loan from Navi Loan app with a fully 100% digital process. They give you loans of up to 20 lakh rupees. All I had to do is download the Navi Loan app, fill in my personal and work details, complete the KYC process that took less than a minute. No hidden charges, minimum documentation, and money was instantly transferred to my account. Navi Loan has served over 8 lakh customers with 1800 crore rupees disbursed in FY21. It's easy to plan a family vacation or any other goals that you may have. Filhal, I'm getting late for the Balle Balle show that is organized on the cruise, so see you there. ये मजे की चीज है यार, ये सेम वही लग रहा है कि वो वाली मूवी चल रही है. Lakshadweep is a very small island, the Kadmat Island. It is a plastic-free zone, which means you will not get bottled water over there. Welcome to Lakshadweep!
gorgeous. I am on a remote island in India. This is the Kadmat Island on Lakshadweep, tucked in one of the corners of India, totally unexplored. This is truly, truly, truly beautiful, and that's why I say I love my India. Look at the waters here, guys. It's so clean and green and blue and everything. तो आप जब भी लक्षद्वीप आए याद से कोकोनट वाटर जरूर लेना. And actually the coconut water here is really good. Also, it is one of their main sources of revenue. They are heavily dependent on fishing, tourism, and third is of course the coconut water, because they also export the coconuts here and they are truly, truly, truly delicious. मीठा है और रिफ्रेशिंग भी. Well, in case you're wondering what you can do in Lakshadweep, well, let me tell you, this island is known for its amazing water sport activities. They've got a lot of things to offer, from scuba diving to snorkeling to glass-bottomed boat, kayaking, banana boat, lots to do. Come on in. This morning we've arrived in Goa just for a few hours, so we are all heading out for a nice authentic Goan meal. One of the other interesting things that you must do while on a cruise is go on a bridge tour and actually see how the ship works. So here I am with Chirag, who's actually taking good care of us and the ship right now. So Chirag, what's the most fascinating part about your job? Meeting amazing passengers, sharing experiences with people, and as we have a life out at sea, the most fascinating thing is Mother Nature that we come across. Like I was telling few passengers right now, there are times where we see 3-4 rainbows together at a time, and the ship literally goes under those rainbows. Wow. There are times where we see 100-200 dolphins together swimming with the ship, playing with the ship. Right. So these experiences are mind-blowing. I can imagine, yeah. And does it ever get tiring to, sleep to this view, wake up to this view? Do you enjoy So I get this question where, don't you get bored seeing the water? And every evening looking at the sunset, every sunset has a different story to tell. I agree. And every day if I have to look at one of these sunsets, and best part is I'm getting paid for it. So. Absolutely. The people often say I have the best job in the world, but I have to say you're giving me some serious competition, seeing some beautiful sunsets every day.
Well, to be honest, I've always enjoyed the destination a lot more than the journey. इसका मतलब मुझे जगह पर पहुंचकर ज़्यादा मज़ा आता है rather than traveling to that destination. But it's the first time that I've enjoyed my journey as much as the destination. In fact, a lot more than the destination. Also because you know हम सब इकट्ठे ही travel कर रहे हैं. It's a cruise vacation. Everyone's together, and honestly, I don't want this wonderful trip to end. बट कुछ ही घंटों में हम मुंबई पहुंच जाएंगे एंड दिस 5-day क्रूज वेकेशन कम्स टू एन एंड. बट आई होप मैंने आपको इंस्पायर किया हो कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही जल्द ये क्रूज वेकेशन प्लान करें. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया, बट ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. ट्रस्ट मी, जितना ये ट्रिप को प्लान करना मुश्किल नहीं था, उससे ज़्यादा मुश्किल है टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर फॉर वन ग्रुप पिक्चर. आर यू ऑल रेडी? स्माइल एवरीवन. Remember to like, share and subscribe to Curly Tales. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off. Bye! भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो कोई शक नहीं कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मजा आता है. और एक्सपीरियंस जो होता है ना, लाइफ टाइम के लिए आपकी मेमोरीज होती हैं. और जो इस वीडियो में बोला गया लास्ट में कि सबसे डिफिकल्ट जो एक चीज रहती है वो सबको इकट्ठे करके फैमिली फोटो लेनी होती है. और ये हकीकत है कि सब लोगों को एक ही टाइम पर इकट्ठा करना, चीजें मैनेज करना, लेकिन आप उन सब प्रोसेस को ना बहुत इंजॉय भी करते हो अपनी फैमिली के साथ. बट ये कि इस क्रूज की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने इसकी एक वीडियो देखी है, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाई गई है. मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक ही टॉपिक को जब डिफरेंट डिफरेंट लोग बनाते हैं ना, वो अपना अपना फ्लेवर उसमें ऐड करते हैं और वो ज्यादा मजा आता है. वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि जब हमने जो है 200 जर्नीज की जो है वीडियो देखी थी, वो एक डिफरेंट एंगल से हमने देखी थी. लेकिन आज की वीडियो देखे ना, तो इसमें जो है और भी ज्यादा थोड़ी बहुत ज्यादा चीजें हमें जो है डिटेल्स देखने को मिली. लेकिन जिस रूम में उन्होंने स्टे किया है ना, वो रूम वाकई बहुत खूबसूरत था. वाकई बहुत खूबसूरत था. और अगर प्राइस की हम बात करें ना, तो नो डाउट प्राइस जो है वो ओके. अगर 2 बंदों के लिए जो है रूम की बात करें ना, हाँ सब कुछ भी वही ना. और 5 दिन का 3 दिन का टूर 45-40 और मैं तो वैसे चॉपस्टिक्स में शायद ही जाऊं कि भाई, क्योंकि जब फ्री में खाना मिल रहा है तो बंदा फिर खाना फ्री खा लेना. नहीं वैसे तो जाके बंदा थोड़ा पिक्चर लेकर आ जाए चॉपस्टिक में. अगर पिक्चर लेने क्योंकि वो चार्जेस ना हो, बंदा पिक्चर लेकर आ जाए, वो खाना. अरे मजाक कर भाई, कोई इस बात को सच ना ले ले यार. हम लोग ये चीज नोट करती है, हम लोग जो चीजें बहुत मजाक में भी करते हैं ना, समटाइम्स बहुत सारे लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं. कमेंट सेक्शन में ना वो हम लोगों को बातें सुना रहते हैं, तुम लोग को ये नहीं पता वो नहीं पता. तो मैं सोच रही होती कि इनको हमारा मजाक क्यों नहीं समझ में आता. अच्छा, मैं इस शिप में सबसे अच्छी चीज जो है ना, वो बालकनी वाला रूम लगा है, जहाँ पर यानी कि आपको एक सेपरेट बालकनी जो है वो दी जाती है, आप इंजॉय करें. और बाकी वो ऐसा पॉइंट है कि अगर आप लेट नाइट भी वहां पे बैठ के नजर तो कुछ नहीं आएगा समंदर में, डार्क की आपको नजर आएगा, लेकिन आपको एक जो है ना वो अलग ही फीलिंग्स वहां पर आएंगी. मैं बताऊं, मैं अर्ली मॉर्निंग बैठना चाहूंगी, क्योंकि जब जैसे ऐसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली पहाड़ों की और समंदर की बात करो, तो मुझे तो खौफ आता है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत लेट नाइट तक ऐसे अकेले बैल्कनी में बैठूंगी जब अगर लाइट भी कम हो. बट मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जरूर बैठना चाहूंगी. नहीं, अकेले बैठने को क्या कौन रहा है, लोगों को तो थोड़ा बोरिंग लगता है यार. कोई बात नहीं, दूसरी साइड पे मुंह करके मैं सब बातें कर लूंगा. मैं अंदर ही बैठ जाऊंगी, मुझे क्या इतनी वो पड़ी हुई है. लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि मुझे लगता है कि आपको सुकून जरूर मिलता होगा जब ऐसे आप ट्रैवल करते हो ना, क्योंकि नेचर के आप इतने करीब जाते हो ना, आपको मजा आता है. और ट्रस्ट में, मुझे पहले ऐसे क्रूज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब मैं कहती थी क्या इतना स्लो आप ट्रैवल करो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे और पानी में रहो. लेकिन जब से हम लोगों ने वीडियोस देखना शुरू किया ना, अब मैं सोचती हूँ जिंदगी में एक मरतबा तो मैंने जरूर ये चीज एक्सपीरियंस करनी है. वैसे नो डाउट क्रूज जो है वो आपको जिंदगी में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि एक अलग ही वो दुनिया होती है वहां पर. अगर देखा जाए एक अलग ही शहर बसाता है शिप के अंदर, कि इतने
इतने ज्यादा इकट्ठे लोग होकर इतने दिन के लिए ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और खासतौर पर अंदर जो एक फैसिलिटीज दी जाती है ना आपको एंटरटेन करने के लिए कि यार अगर आपने 4-5 दिन का टूर करना है तो आप बोर ना हो, क्योंकि ऑन बोर्ड 129 लोग हैं वो आपको एंटरटेन करने के लिए हैं। तो आप ये सोचिए अंदर कितनी ज्यादा एक्टिविटीज मुझे होंगी। ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हर चीज प्लान की जाती है कि अगर 5 डेज 10 डेज या जो भी मैक्सिमम डेज वहां पर रखे जाते हैं एक क्रूज के अंदर, तो उसमें हर चीज को एक ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं कि लोगों को रेस्ट करने का भी टाइम मिले, लोगों के लिए एक्टिविटीज है। बीच में वो जो डांसिंग वाली एक्टिविटीज थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और जो एक बिल्कुल आई डोंट नो वो कौन सा डेक था, लेकिन वहां पर भी लोग, मुझे लग रहा था कि सबसे ऊपर वाला है, ओपन ही लग रहा था, जहां पर सब ऐसे डांस कर रहे थे। हाँ। मुझे वो भी बहुत मजे का लग रहा था। मुझे ऐसी वाली एक्टिविटीज वैसे ज्यादा अच्छी लगती हैं जिसमें आप थोड़े एंटरटेन ज्यादा होते हैं। यार नो डाउट, क्या नाम है, आप एंटरटेन होने गए हैं तो आप अगर एंटरटेन ना हो तो आपको मजा फिर जो है वो कैसा। लेकिन काम्या जी की अगर मैं बात करूं, जो उन्होंने एंड में बात की, वो भी एक हकीकत है कि समटाइम्स आपको जो है ना सफर एंजॉय करने का ज्यादा मजा आता है बजाय इसके कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो वो उनको अब आया ना जरा ज्यादा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ है। समटाइम्स मैं बात कर रहा हूं। मुझे तो वैसे ज्यादा मजा पता नहीं किस चीज का आता है। मैं तो भाई अपनी फैमिली के साथ गया था ना, मैं तो सोता हुआ गया था, क्योंकि गाड़ियों में मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो इसलिए मैं मुंह में टॉफी रख लेता था, मैं सो जाता था। मौसम की तबीयत ना इसी कन्वीनियंस के मुताबिक खराब और सही रहती है। मतलब अगर जब इसका मूड होगा ना इसने ट्रैवल करना है तो ये सब कुछ सेट कर लेगा। लेकिन अगर कहीं पर हम कहेंगे ना कि चलो मौसम ऐसे कर लेते हैं और अभी तुम मेरी तरफ देखते जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाली, लेकिन ये ऐसा होता है, तो ये कहेगा आपको पता है ना मेरे से सफर नहीं होता। तो फिर मैं कभी सोचती नहीं होता, नहीं वो मुझे पता है कि नहीं होता, इसकी तबीयत भी खराब होती है, लेकिन जहां पर इसका दिल होता है ना कि इसमें जाना है, वहां पर इसकी तबीयत कैसे सही हो जाती है कि चलो कोई बात, मैं टैबलेट खा लूंगा, मैं सो जाऊंगा। बट ये है कि जब हम लोग, पर ऐसा बहुत रेयर होता है भाई। हाँ भाई बहुत रेयर हाँ, होता है। वरना मोस्टली मैं इनकार ही करता हूँ गाड़ी पे सफर करने को। हाँ 99% में इनकार करता हूँ, 1% कभी जब ये ज्यादा फोर्स करे तो मैं एग्री कर जाता हूँ। लेकिन ये कि एक चीज बीच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती हैं कि जो आपको काफी ज्यादा सुविधा देती है, जैसे कि लोन की वैसे बात में की। बट ये कि मैं कभी लोन लेने के हक में नहीं होती। मैं ये कहती हूँ पैसे हों तो ठीक है, काम कर लेना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सब्र करें, शुक्र करें, टाइम आएगा तो फिर उसको कर लेंगे फिर से। लेकिन ये कि हाँ आपको एक सहूलत हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग जब ऑन बोर्ड आप मतलब एक साथ जाते हैं तो पैसा तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, तो उसकी भी सहूलत देखनी पड़ती है। एनीवे गाइस, आप लोगों में से किस किस ने इस क्रूज का एक सफर का आनंद लिया है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और किसका प्लान है आने वाले दिनों में कि वो इसका आनंद लेना चाहता है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।